Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna give you the IELTS exam prediction for your 11th January 2025 IELTS exam. So in this video, I know that you already saw my previous video for 11th January 2025 IELTS exam. In that video, I'll just give the very specific or brief prediction for your IELTS exam, like what your exam will be and how is the level of that exam or the overall level of this the exam, right? For your exam is going to be on 11th January 2025. But in today's video, I'm going to give you the possible topics which you can have it in your IELTS exam in your listening, reading, and writing section. Okay, so before starting this video, if you are new on this channel, please don't forget to subscribe this channel, because here you can get the very close prediction for your IELTS exam, and it is based on the review of your latest exam and latest and greatest exams. Okay, so before starting this video, if you are new on this channel, please don't forget to subscribe this channel, because here you can get all your possible answers, doubt clearing if you have it related with your IELTS exam. Or now, very soon in my upcoming videos, you can see your computer based IELTS exam prediction too. I know computer based exams every day or every other day, but on that exam also I will start going to predict that exam predictions too, because my students, they requesting me a lot for that predictions too. So I'm going to start that very soon. But before that, please don't forget to subscribe, and because in that way I can help the community to grow, to educate my Indian, my people, my Indian brotherhoods and brothers and sisters. Okay, so I am from USA, and then I'm running my IELTS preparation center here, IELTS coaching center here, that is IELTS Wisdom, or Assist IELTS Wisdom. If you want to be a part of my virtual learning, free virtual learning, then only requirement is you need to subscribe this channel. And if you have any question, any doubt, you can also write down in the comment section. Now let's get started without wasting your time. So very first possible topic is part one. So usually your part one is filling the blanks, question answers with conversation. So the filling the blanks and questions, right? This is usually your prediction is in the back in my exams, right? So usually this exam comes with filling the blanks. So in that you need to prepare social, जो है आपकी सेटिंग्स, जो सोशल नेटवर्क, जो सोशल टॉपिक है उसके ऊपर। सो जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी रहेंगी वो सोशल सेटिंग्स के ऊपर रहेंगी। और सेकंड, आपको जो जो इसके टॉपिक्स है, पॉसिबल टॉपिक्स दैट शुड बी बुक्स, अपॉइंटमेंट्स और ट्रैवल प्लान्स। सो इसको आप अच्छे से रेडी करके जाइएगा अपने एग्ज़ाम से पहले। पार्ट टू जो रहता है आपका, दैट इज़ MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, जिसे आप बोलते हैं, और मैप completion. That possible topics in that topic, in this under this part 2, is going to be community events or workplace features. And part 3, multiple choice question answers and match the information, so likely based on research projects and course details. And going forward to the part 4, so part 4 is Phillips, mainly monologue about scientific or academic topics. Okay, so these all are the based on these topics. So please, जो हमारी prediction थी इन सब topics के ऊपर, part 1 is going to be easy to moderate, part 2 will be easy, and part 3 is easy to moderate, and part 4 is easy to moderate too. So the topics you can have it now, and also you have your prediction in my previous video, you can look at that also.
एंड प्रिपरेशन टिप जो है इस एग्ज़ाम की आपके लिए है, फोकस ऑन लिसनिंग एक्सेंट्स. आई नो accents is really matters because students get confused in the accents. So you need to prepare all the listenings in British accent, Australian accent, and North American accents, okay? And paying attention to the key details, because these are the things which where students are little lacking, okay? Okay, so now moving forward to your reading section without wasting your time. If you are new on this channel, please don't forget to subscribe this channel, because here you can get your very close prediction of your IELTS exam. All right. So moving forward to passage 1 is true false not given sentences. Sentence completion. Okay. So usually आप इसको Phillips के form में भी देखते हैं. So factual or descriptive, often about history, nature, or science. These are the important areas where you need to prepare your exam. And also passage 1 जो हमारी previous prediction थी, that is easy to moderate, means आपकी easy to moderate के अंदर क्या रहता है, you need to pay close attention on your vocabulary and techniques. Okay, so you need to learn the scanning techniques too. Now moving forward to passage 2. Passage 2, usually you have matching headings or list of headings. You need to analytical, possibly about technology or business. So these two areas you need to make yourself very strong, because technology today, in today's scenario, technology is one of the possible topic, very possible. You can have the question answers from these topics, technology and or business. Okay, so prediction was easy, so ये आपका easy रहेगा, because we all are aware about the technology and the business scenarios. Now in these days people are using the online business, और किस तरह का business वो करना पसंद करते हैं, import export business. They are not storing the things in their houses, they are just interested to take the thing, like playing the mediator roles. तो एक जगह से लेना और प्रोवाइड करवाना एंड देन उसका कमीशन ले लेना, राइट? सो दिस अ डिफरेंट टाइप ऑफ businesses and their types. So you need to learn about all the types. And so this is the prediction for your possible prediction for your passage 2. And passage 3, so passage 3, usually you have summary completion, yes or no, or not given answers, questions, right? So type जो आपको इसके अंदर तैयार करनी है, type of topics: abstract or arrangement, or sorry, argument, active with complex language, possibly about social issues or innovations. Innovations क्या रहता है? Innovations means your project जो आपके ideas, right? Ideas और आइडियाज़ के साथ आपने कोई नई चीज़ को डेवलप करना है, दैट इज़ द इनोवेशन. सो यू नीड टू प्रिपेयर द टॉपिक्स लाइक दैट एंड एक्सपेक्ट द समरी कंप्लीशन. ओके, सो समरी कंप्लीशन के अंदर आपको ये ज़रूर पूछा जाएगा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, और योर एक्सपेक्टेशन और योर आइडिया. ओके, सो इसका जो प्रडिक्शन था इन माई प्रीवियस वीडियो वॉज ईजी. सो प्रडिक्शन इज़ द सेम, बट यू नीड टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स टू. नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन टिप फॉर दिस एग्ज़ाम. सो प्रैक्टिस स्किमिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक्स एंड इम्प्रूव योर एबिलिटी टू लोकेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेटेस्ट टिप फॉर दैट गाय फॉर दिस एग्ज़ाम फॉर यू गाइज. एंड जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, आई एम एक्सप्लेनिंग इन द ट्रांसलेट लैंग्वेज इन हिंदी और पंजाबी इफ़ यू वांट मी. सो इफ़ यू अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, तो ओनली आपको करना क्या है, सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लोज वंस के साथ, जो कि आइल्स की तैयारी कर रहे हैं या आइल्स की जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आइल्स एग्ज़ाम क्या है इसके बारे में जानने के लिए, और इसके बेनिफिट्स क्या है. जब आप अब्रॉड आते हो तो यहाँ पे आपको उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आप इसको करने से क्या सीखेंगे. सो दीज ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मेनी अदर क्वेश्चंस, लाइक स्टूडेंट्स हैव मेनी क्वेश्चंस. सो जो भी आपके क्वेश्चंस और डाउट्स को क्लियर करने के, आप प्लीज़ उनको सजेस्ट ज़रूर करें आइल्स विजडम, विशिष्ट आइल्स विजडम के बारे में. सो हियर यू कैन गेट ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके प्रेडिक्शंस, पॉसिबल एग्जाम टॉपिक्स, एंड ऑल्सो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर फ्यूचर करियर गोल्स. ओके,
जो भी आप, और जॉब इंटरव्यूज़ की भी हम तैयारी करवाते हैं, एंड ऑनलाइन फ्री स्पीकिंग भी यहाँ पे रहती है. सो ओनली थिंग व्हाट यू नीड टू डू फॉर सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि वाई वी आर नॉट चार्ज. ओके. सो हम पैसा क्यों नहीं लेते हैं, जैसे कि आजकल का जो टाइम है उसके अंदर फ्री में कोई आपको सर्विसेज नहीं देता है. वाई वी आर गिविंग यू द फ्री सर्विसेज. सो गाइज, because I want to help my community, I want to be each and every individual successful in their life. जो उसके ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट हों, तो वो सब के लिए मैंने ये जो है चैनल को शुरू किया है. दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड जो भी मैं यहाँ पे भी अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो फ्री. आई एम नॉट चार्जिंग. अगर मुझको पेमेंट लेनी होती है, आई ओनली आस्क देम टू पे द जो मेरी इक्विपमेंट्स हैं, जो मैं रेंट के ऊपर रूम लिया है, आई नीड द मिनिमम चार्जेस टू पे ऑल दैट डेप्ट्स. ओके. सो जो भी मेरे बिल्स हैं और जो मैं ये इंटरनेट का यूज़ कर रही हूँ, सो उसके लिए ही मुझे जो है very minimum. I know in India you are paying a lot of money for this exam, you are paying for the preparation, right? But here I'm not charging that much of money. Okay. So यहाँ पे only $5 or $10 जो है मेरी फ़ीस है. $10 मिनिमम, और मैक्सिमम अगर आप मेरा इंडिविजुअली 1-on-1 टाइम ले रहे हो यहाँ पे, देन आई विल चार्ज $5 एक्स्ट्रा. बिकॉज जो रूम जो हम रेंट के लिए लेते हैं, वहाँ पे भी हमें एक लिमिट के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर वहाँ पे रहना होता है. सो अगर हम वहाँ पे 5-10 आधा घंटा एक्स्ट्रा रुकते हैं, देन वी नीड टू पे फॉर दैट. ओके. सो बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी परमानेंट, अगर कहें हम कि हमने एक रूम लिया हुआ है, कोचिंग सेंटर खोला हुआ है. नो, वी हैव इन अमेरिका यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव द रेंटल प्लेसेस, जो आप रेंट करते हो टेम्परेरीली. तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी नहीं रहती, कोई चीज़ ख़राब हो गई, आपको रिपेयर करवानी है या कुछ है. बट यहाँ पे एक एडवांटेज रहती है कि आपको फर्नीचर फ्री में मिलता है. आपको फ्री के अंदर वहाँ जो भी आपका सेंटर है, तो वहाँ पे आपको फ्री में सर्विसेज मिलती हैं, साफ़ सफाई मिलती है. यू हैव नो नीड टू वरी अबाउट क्लियरिंगनेस. ओके. तो वो क्लीन करके देते हैं. यू आर जस्ट यूजिंग द फैसिलिटी. आप कुछ घंटों के लिए उनकी फैसिलिटी को यूज़ करते हैं. यूजली मेरे सेशन सारा दिन चलते हैं. बट अगेन आई जस्ट आस्क द स्टूडेंट्स टू pay if you want extra time to stay after my scheduled students. जो मेरे scheduled students हैं, उसके अलावा अगर आपको extra time, you need to come back again, but we need to charge like $5 extra for that, or $10 extra for that. It depends on the time, how much time they need to stay with us. Okay. So this is how we work. So this is completely free org. So अगर आपको भी कुछ donate करना है हमारे चैनल को, हमारे IELTS विजडम को प्रमोट करने के लिए, यू कैन ऑल्सो डोनेट, बिकॉज देयर इज़ अ डोनेशन बटन देयर. तो आप भी उसके अंदर ₹50 और ₹100 का डोनेशन डाल सकते हो, अगर आपको कुछ एडवांटेज मिल रहा है हमारी वीडियोस के. ओके. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द नेक्स्ट राइटिंग प्रडिक्शन. सो राइटिंग के अंदर वेरी क्लोज प्रडिक्शन जो पहले हमने की थी, वो थी लाइन, बार, टेबल एंड प्रोसेस कॉम्बिनेशन. तो जो ये आपकी पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो है, रिसेंटली मैंने अपलोड की थी, ये थी. और उसके अंदर एड अप इन दैट वीडियो इज़ यू माइट नीड टू कंपेयर द ट्रेंड्स और प्रोवाइड द ओवरव्यू ऑफ द गिवन डाटा. सो दीज आर वेरी वेरी क्लोज प्रडिक्शन फॉर योर IELTS एग्ज़ाम. जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए आपको ये प्रिपेयर करना है जाने से पहले. और ऑब्वियसली आप और भी प्रिपरेशन अपनी करके जाएंगे, बट दीज आर द एक्सपेक्टेड थिंग्स विच यू कैन हैव इट इन योर अपकमिंग IELTS एग्ज़ाम. ओके. सो टास्क 1 अभी जनरल, क्योंकि इन माई प्रीवियस वीडियो द टास्क जो मैंने प्रोडिक्ट किया था वो ओनली फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स था. तो मेरे जर्नल स्टूडेंट्स यूजुअली जो मेरे सेंटर में आते हैं, तो वो लिटिल बिट अपसेट थे, क्योंकि उनको था कि जो स्टूडेंट्स जनरल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनको
वीज़ा चाहिए जॉब के लिए बाहर आके, तो प्लीज़ उनके लिए भी आप प्रेडिक्ट करें क्लोज टॉपिक्स जो आने वाले हैं. सो दिस इज़ द प्रेडिक्शन फॉर देम, जर्नल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स. सो जर्नल ट्रेनिंग लाइकली, सो इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स जो है वो तो आपको पता ही है, दो टाइप की रहती है, राइट. सो उसके अंदर टॉपिक जो आपको है वो आपको इंक्लूड करने हैं रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और राइटिंग अ कंप्लेंट. तो ये दो तरह की आपको एक स्ट्रक्चर को आप रेडी करके जाइए ताकि आपको जो प्रॉब्लम ना आए. सो आपको उस तरह से रेडी करना है खुद को. सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प टू प्रिपेयर दैट स्ट्रक्चर और एनी काइंड ऑफ एग्जाम, सो आई एम ऑलवेज हियर टू लेट यू नो अबाउट दैट what you need to work on. So I will definitely help you. और अभी टास्क 2 जो है वो बोथ जर्नल एंड एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए सेम रहता है, जैसे कि सबको पता है. सो टॉपिक खुड इंक्लूड हियर, जो पहले मेरे स्पेसिफिक मैंने बहुत सारे आपको टॉपिक्स बताए थे, दोज टॉपिक्स आर ऑलवेज बी देयर. बट अगेन वेरी क्लोज टॉपिक जो है आपको 3 जो है बहुत अच्छे से करके जाने हैं. जैसे एजुकेशन, उसके अंदर आपको रोल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड स्टडी अब्रॉड, इसको बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है, प्रिपेयर करके जाना है स्ट्रक्चर के साथ, वोकेबलरी के साथ. और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, एग्री और डिसएग्री ओपिनियन, तो ये सब टॉपिक्स के साथ आपको ये 2 टॉपिक तो अच्छे से करके जाने हैं एजुकेशन को लेके. ओके, व्हाट इज़ द पर्पसेस, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग. ऑफलाइन लर्निंग मीन्स पेपर पेन वाली, ओके, जो आप रिटन एग्जाम देते हो या रिटन तैयारी करते हो. ऑनलाइन मीन्स वर्चुअली यू आर यूजिंग द इक्विपमेंट्स लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, ओके, जो भी आप यूज़ कर रहे हो. स्टडी अब्रॉड, आपको इंडिया के अंदर या जो भी आपकी होम कंट्री सिटी है उसके अंदर आप रह के स्टडी के आपको क्या बेनिफिट्स रहते हैं. और इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी अब्रॉड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, सो प्रिपेयर द डिस्कशन ऑन दैट टॉपिक. ओपिनियन आपका क्या है जो ऐसे टाइप के अंदर, और एग्री डिसएग्री, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ. और सेकेंड टॉपिक इन्वायरमेंट. ओके, सो टैकलिंग द इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज मेनली. इन्वायरमेंट जो आप आजकल टैकल कर रहे हो, व्हाट यू आर टैकलिंग, क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी जैसे आप सोलर पैनल्स यूज़ करते हो, हाउ टू जनरेट, राइट. सो और जनरेशन, जो एनर्जी जनरेट करने के सोर्सेज हैं उसके ऊपर आपको करना है. एंड द थर्ड टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोसाइटी के अंदर आपको करना क्या है, वर्क बैलेंस एंड अर्बनाइजेशन. तो इसके ऊपर आपको प्रिपेयर करने हैं अपने टॉपिक्स. और फोकस क्या करना है आपने यहाँ पे, तो फोकस करना है आपको स्ट्रक्चरिंग द एसेस वेल, लाइक आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन बहुत ही सॉलिड होना चाहिए विद कोहेंसिव डिवाइस इफेक्टिवली आपको यूज़ करनी है. यूजिंग द कोहेंसिव डिवाइसेस मीन्स जो भी आपका लैंग्वेज जो आपने यूज़ करनी है उसके अंदर, और वोकेबलरी जो यूज़ करनी है, जो पैराफ्रेजेस आपने यूज़ करने हैं, उसका आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है. और रिव्यू योर पास्ट पेपर्स, दैट इज़ अगेन एडवाइस फॉर यू ऑल. प्रैक्टिस द टेस्ट ऑफ योर जो आपकी बुक्स है, कैम्ब्रिज बुक्स है 11 to 20 तक, 11 to 19, 20th अभी आपकी आनी है जून के अंदर, डेफिनेटली वो पब्लिश हो जाएगी और रेडीली अवेलेबल होगी. यू कैन हैव दैट वन, बट till now you need to practice all your past tests and work with the management, like your time management, to ensure that complete each and every section with the allotted time. अपने आप को आप टाइम दे, टाइम के साथ उसको कंप्लीट करें. यूज़ अ रेंज ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स एज आई मेंशन ऑलवेज टू यू, एंड ग्रामर एक्यूरेटली, एंड राइटिंग में आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, एंड स्पीकिंग ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज ऑल आर द टॉपिक which you need to be practice a lot, because these are the important things which you need to prepare for your upcoming IELTS exam on 11th January 2025. This is very very close prediction for your IELTS exam. All right, thank you very much students for watching this video till end. If you need any other information, please click on my video channel and watch the videos, and if you have any question, concerns, write down in the comment section. I will definitely help you out with that. Okay, thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Bye bye, take care, and best of luck for your upcoming IELTS exam. Bye bye.